Good morning, students. Today I will revise the whole chapter of chapter number 18, pollution of air and water. Firstly, we start the choose the correct option. First, choose the correct option. What is the percentage of nitrogen in the air? What is the percentage of nitrogen in the air? 78% is available nitrogen in the air. Where are chlorofluorocarbons used? Where are chlorofluorocarbons used? Refrigerators, air conditioners, aerosol, spray, all of the given. आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन. सब जगह पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होती है. जो दिए हैं ऑप्शंस उनमें सब जगह पे क्या यूज़ हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. नेक्स्ट, विच एयर पोल्यूटेंट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? विच एयर पोल्यूटेंट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है एयर में जो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड में? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. CO ऐसा पोल्यूटेंट है हमारे एयर में जिसके कारण जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है ब्लड में. नेक्स्ट, हु डैमेजेस द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? कौन डैमेज करता है ओजोन लेयर को? CFCS. कौन डैमेज करता है? CFCS. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG? LPG की क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG? Liquefied petroleum gas. It's the full form of LPG. What is the full form of LPG? Liquefied petroleum gas. Next, in which month is वन महोत्सव celebrated? कौन से मंथ में जो वन महोत्सव है वो सेलिब्रेट होता है? कौन से मंथ में? In which month is वन महोत्सव celebrated? In a July. In a July month is वन महोत्सव celebrated. In which month? In July month वन महोत्सव celebrated. Next, which Indian river among one of the 10 most endangered river in the world is found by the study of air pollutant is responsible for acid rain? Which air pollutant is responsible for acid rain? Sulfur dioxide is responsible for a acid rain. Which air pollutant? Sulfur dioxide is responsible for a acid rain. Next, which statement is correct for a ozone? Which statement is correct for ozone? It is essential for breathing. It is content in 3% in air. It is responsible for global warming. It absorbs harmful ultraviolet rays of the sun. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओजोन के लिए? It absorbs harmful ultraviolet rays of the sun. Next, which can be made safe for drinking with candle type filter? Which type of method is this? Water can be made safe for drinking with candle type filter. Which type of method is this? In this, physical methods are available in this filter. Okay. Next, what is called when the water used to wash vegetables is poured in potted plant in the garden? What is called when the water used to wash vegetables is poured in potted plant in the garden? जब हम जो वॉश करी हैं वेजिटेबल्स उसी पानी से हम गार्डन में पानी वो डाल देते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीयूज़. क्या बोलते हैं? रीयूज़. नेक्स्ट, ग्रीन हाउसेज गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डैश? ग्लोबल वार्मिंग. Next, the number of people suffering from dash related diseases. The number of people suffering from dash related diseases go on increasing due to air pollution. The number of people suffering from respiratory related diseases
go on increasing due to air pollution. Next, a problem of producing sound during breathing in children is called a wheezing. The dash is made up of smoke and fog. The dash is made up of smoke and fog. Smoke is made up of smoke and fog. Full name of CNG is compressed natural gas. Next, plant consume atmospheric CO2 in dash process. Plants consume atmospheric CO2 in photosynthesis process. Plants consume atmospheric CO2 in photosynthesis process. Next, many countries of the world have agreed in an agreement dash to reduce emission of greenhouse gas. कौन सा एग्रीमेंट है? द क्योटो प्रोटोकॉल. Have agreed an agreement, the Kyoto Protocol, to reduce the emission of greenhouse gases. Next, plastic polythene bags are dash type of pollutants. Plastic polythene bags are non-biodegradable type of pollutants. Non-biodegradable type of pollutants. Dash. Next, the percentage of oxygen in the air is dash. The percentage of oxygen in the air is 21%. Next, dash is produced from an incomplete burning of fuel is such as petrol and diesel. Carbon monoxide. क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट, इट इज एडवाइजेबल टू यूज लीड कंटेनिंग पेट्रोल in vehicles. It's a false. To escape into space. It's a true. The Gangotri glacier in the Himalayan has started melting due to global warming. It's a true. Fossil fuels should be used as an alternative energy source instead of solar energy. Fossil fuel should be used. ऐसा होना चाहिए? No, it's a false. The bacteria present in the faces of mammals are indicators of the quality of water. The bacteria present in the faces of mammals are indicators of the quality of water. It's a true. Next, chlorination or boiling of water kills the germ present in it. It's also a true. Okay, now start one sentence answer. What are the pollutants? Pollutants are the harmful substances which contaminate air, water and soil, disturbing the health of organisms. Pollutants are the harmful substances which contaminate air, water and soil, disturbing the health of organisms. Next, state the content of nitrogen and oxygen in air. The content of nitrogen in air 78% and that of oxygen is 21%. Next, how does air pollutants come from natural sources? Air pollutants come from natural sources like forest fire or volcanic eruptions. फॉरेस्ट फायर होता है जब और वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तब नेचुरल सोर्सेज हैं, इसी से एयर पोल्यूटेंट्स बाहर आते हैं. विच पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल? पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक major source. For which gaseous pollutants? Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Next, which breathing difficulties are caused due to smoke?
Breathing difficulties such as asthma, cough, wheezing in the children are caused due to smoke. Next, which gaseous pollutants is produced by the combustion of coal in power plants? The gaseous pollutant sulfur dioxide is produced by the combustion of coal in power plant. Next, state the effect of sulfur dioxide on health. Sulfur dioxide can cause respiratory problems including permanent lung damage. ये सब प्रॉब्लम्स वो हमारे हेल्थ के रिलेटेड कॉज कर सकती हैं. Where are CFCs used? CFCs, chlorofluorocarbons, are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays. नेक्स्ट है 3-4 सेंटेंस में एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स. अब एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है जो कि ऑटोमोबाइल से होते हैं. ऑटोमोबाइल्स में ग्रीन पेट्रोल और डीजल होता है, वो व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है. ये जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्मोक जनरेट होता है. ठीक है, ये क्यों जनरेट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड द डीजल. क्लियर? इसी कारण हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रहा है. एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन बाय टाइनी. ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जैसे स्टील मेकिंग होता है, माइनिंग होता है, तब भी ये टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. पावर प्लांट गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल्स विच पोल्यूट द एयर. जो पावर प्लांट्स हैं वो टाइनी ऐश पार्टिकल्स को भी बाहर निकालते हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं. व्हाट आर वाटर पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट चेंजेस अकर इन वाटर ड्यू इट. वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनसे क्या चेंज आता है हमारे वाटर में? वाटर पोल्यूटेंट्स जो वाटर को हार्मफुल कर रहे हैं, जैसे सीवेज है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, सिल्ट है, ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं. ये वाटर क्या आते हैं? इन्हीं वाटर सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूटेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि यही वाटर को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं. एज पोल्यूटेंट्स मिक्स इन वाटर द क्वालिटी ऑफ वाटर इज अफेक्टेड. वाटर की क्वालिटी अफेक्ट होगी, स्मेल आएगी, कलर चेंज होगा, टेस्ट में चेंज होगा. ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और ये वाटर क्या है? सेफ भी नहीं होगा पीने के लिए. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आपको पता ही है. हमारे अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या करती हैं? वो हमारे में जो सन की रेडिएशन को आने देती हैं पर बाहर जाने नहीं देते, जिसके कारण टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ये किसके कारण होती है? मेनली CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ये ग्रीन हाउसेस का वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, नर्सरीज़ में यूज़ करा जाता है, जो ऐसे ग्लासेस में प्लांट्स को रखा जाता है जो हीट को आने तो दे रहा है पर हीट को बाहर जाने नहीं दे रहा, जिसके कारण जहाँ पे टेम्परेचर मतलब जहाँ पे बहुत ठंड होती है वहाँ पे ऐसी ड्रिंकिंग, जो हमें पानी देखने को क्लियर लग रहा है वो हमेशा ड्रिंकिंग के लिए फिट है नहीं. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं जो हमने अपनी नेक आइट से नहीं देख सकते हैं. इसको पहले हम वाटर को यदि बॉयल करेंगे तो ही वाटर पूरा प्योरीफाई बनेगा, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे. फिर डिटेल्स में आंसर देखते हैं. एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एसिड रेन. हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस. अब एसिड रेन पहले क्यों हो रही है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में एडिड होती है. वो कहाँ से आती है? जब ये फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं व्हीकल्स में, फिर इंडस्ट्रीज़ में जो धुआं निकलता है उसमें भी ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है. जब ये वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाती है तब ये एसिड में चेंज हो जाती है. इसका सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. ये क्या करते हैं? बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स को कोरोड्स कर देती हैं. ठीक है, ये हमारे वाटर को एसिडिक कर देती हैं. हमारी जो हमारे अंदर एलिमेंट सेंसेशन एलिमेंट्री ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं. क्रॉप्स को हार्मफुल करती हैं, सॉइल को
अनफर्टाइल कर देती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ एसिडिक इनडायरेक्टली चले जाते हैं। ये हमारी स्किन पर इरिटेशन क्रिएट करती है, हमारी आइज़ पर करती है। फिर इंडिविजुअल लेवल हम कैसे एयर पोल्यूशन को कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए, हमें सीएनजी जैसी गाड़ियाँ यूज़ करनी जिसमें सीएनजी एलपीजी का यूज़ हो, हमें बाईसाइकिल चलाना चाहिए, थोड़ी दूर जाना है तो हमें ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए इंजन को। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को ऐसे बर्न नहीं करना चाहिए, उसकी मैन्योर रेडी करनी चाहिए। सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जा रही है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे हमारे हिमालय पोलर रीजन में जो मेल्ट वो है, हमारे बर्फ़ है, तो वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, स्नो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, ये इससे रेनफॉल के पैटर्न्स में भी अफेक्ट करता है, जिससे हमारे एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ता है, फॉरेस्ट पे भी, प्लांट्स एनिमल्स पे भी इसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर वी शुड प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स। हमें रिवर्स के पोल्यूशन को क्यों प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ है वाटर, सब काम हम अपने वाटर से करते हैं। रिवर से हम वाटर को लेते हैं, रिवर से जो वाटर होता है उसमें हम अपनी घर की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, हम इरिगेशन भी करते हैं, पर हम यदि उसको पोल्यूटेड करते जाएंगे रिवर्स को, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर हम यूज़ कर पाएंगे, नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसलिए रिवर्स में पोल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो क्या है, विदाउट सेफिंग ड्रिंकिंग वाटर को ले रही है, उनके पास ड्रिंकिंग वाटर सेफली नहीं मिलता है उनको। सो वी शुड प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स, इसलिए हमें रिवर्स के पोल्यूशन को रोकना चाहिए। फिर सीएनजी एंड सीएफसीज में डिफरेंस है, तो पता ही है, जो सीएनजी तुम्हारी कंप्रेस्ड है वो क्लोरोफ्लोरो है, वो व्हीकल्स में यूज़ होती है, वो क्लीन फ्यूल है, पर वो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स में यूज़ हो रहा है। सीएफसीज ये पोल्यूटेंट नहीं है सीएनजी, और वो पोल्यूटेंट डैमेजेस है, वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। फिर प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में, प्योर एयर क्या होता है, प्योर एयर फ्री होती है माइक्रोब से, हार्मफुल पोल्यूटेंट गैसेस से, पर उसमें स्मोक होता है। पोल्यूटेड एयर में डस्ट होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक अवेलेबल होता है कई बारी। प्योर है 78% N2 क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड जो एयर कंटेंट एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं वो अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत लेस होता है इसमें, और अदर गैसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे सल्फ़र हो गया, उनके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ज़्यादा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। यहाँ पे फिर से मैंने एक बार आपको एक रिवाइज़ करवा दिया है चैप्टर, किस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।